मैम दिवांशु. Yes, few of the students, they were facing the problem, like they were asking me to repeat this concept, that is pro rata allotment. Pro rata अपने आप में कुछ भी नहीं है. Pro rata is to be applied in case of over subscription students when you receive the applications more than. It means कि subscribed capital will be more than the issued capital, then only the company will use your pro rata concept. Pro rata concept means they are not in a position to allot the shares in full, because that is their limitation. Like you are getting the applications of 20,000 shares, but you just have 11,000 shares to allot. So in that case 9,000 shares को क्या करें? ठीक है, पहला ऑल्टरनेटिव कहता है 9 के 9,000 को रिजेक्ट कर दीजिए. लेकिन प्रो राटा में हम लोगों ने प्रपोर्शन वाइज क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं. एंड हाउ दैट प्रपोर्शन वी विल बी यूजिंग, लेट मी टेल यू. Proportion, yesterday also I discussed it with you. How proportion wise we will be allowing. So this is your applied shares, this is your allotted shares. Done. इस कॉलम का टोटल हमें पता है 20,000 बनाना है. The way he will tell you in the question. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहां पे वो प्रो राटा अप्लाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल 5,000 को आपने क्या कर दिया, सिंपली रिजेक्ट, और बाकियों के ऊपर कहता है बैलेंस के ऊपर प्रो राटा अप्लाई करो. अब बैलेंस के ऊपर प्रो राटा अप्लाई करने का मतलब क्या है, बैलेंस इधर रह गया 15,000 वालों को मैंने क्या दे दिया, 11,000. दिस इज प्रोपोर्शनल. जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया था उनको 11 शेयर मिले. लाइक दैट वे यू कैन मेक द प्रोपोर्शन. ये मैंने कुछ राउंड ऑफ ऐसे नहीं लिया, रैंडमली आई मेड एन एग्जांपल एंड हियर बाय वी आर अप्लाइंग द प्रोपोर्शन. पहले केस में आप टोटल रिजेक्शन वाला केस लगा रहे हो, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, प्रो राटा. ठीक है, so we will be continuing the illustration, you will get more. And one thing more, that illustration I will be solving with the help of a table, and that table will tell you the whole of the calculations. Let's see. Again I will start that illustration. It was illustration number 10 for 11. It was 13. Okay. Yes, 13. Krista Hospitality. That we have discussed. Okay, third part करना है. Third part. Let's see the third part. Again, I have to write the whole statement on the board. 13th illustration, C part. What was the case? You were having 1 lakh shares to issue, but you are getting the applications of 4 lakh shares. तो मैंने उलट साइन डाल दिया. This issued capital is less than the subscribed capital. तो रिवर्स हो गया. ठीक है, otherwise it is a case of what, over subscription. You are getting more applications from your applicants, right? अब कैसे हम लोगों ने अमाउंट को कवर किया था, 50 रुपीज वो देयर, जिसमें 10 रुपीज एप्लीकेशन पे हैं, 15 रुपीज अलॉटमेंट पे हैं, राइट. फिर 15 रुपीज आपकी फर्स्ट कॉल थी, एंड देन 10 रुपीज आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल. ठीक है, like that way he has covered. Now what he is saying, application 4 लाख की आई, हमने अलॉटमेंट कर दी 1 फरवरी को, 1 महीने के बाद. थर्ड केस देखिए. I told you I will be solving it with the help of a table. So first column will be of applied shares. आगे जाके मैक्सिमम क्वेश्चन हम टेबल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे. So it is the right time to frame the table here. Reject 2 लाख शेयर्स को कहता है रिजेक्ट कर दो. Nil, no allotment at all. Third point पढ़िए मेरे साथ. Accept full application for 80,000 shares. 80,000 वालों को 80,000 ही देना है, मीन्स 100% अलॉटमेंट है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है. फिर वो कहता है मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. यहाँ पे 20,000 आ गया, और रिमेनिंग में कैसे निकालूंगी, इस साइड का टोटल, इस कॉलम का टोटल 4 लाख बनाना है, और इसका टोटल कितना है, 1 लाख. Know how I will be calculating it. So it will come to you 1,20,000. देखो कितना गैप है. जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया, you are only allowing them or allotting them 20,000 shares, right? Clear? अब अगला कॉलम देखना जरा.
अब उसने क्या बोला है, जो एक्सेस मनी है वो आपने कॉल्स के अगेंस्ट लिखा है ना, एक्सेस मनी आपने अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट करनी है। तो पहले तो यहाँ पे देखो सारे का सारा एक्सेस है, क्योंकि 2 लाख के लिए इन्होंने अप्लाई किया, आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, सारे का सारा एक्सेस है, ये तो वापस जाएगा। इस केस में कोई एक्सेस है ही नहीं, and hereby we will be finding the excess and then we will be adjusting and then we will be calculating क्या कुछ वापस करने को है कि नहीं। For that I need to proceed the table। और एक बात, टेबल में कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, जो एंट्रीज का सीक्वेंस है उसी तरह से टेबल चलेगा। एंट्री में पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो आपने पहला कॉलम भी यही बनाना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। बट इट विल मेक योर कैलकुलेशंस वेरी वेरी इजी। एक बार टेबल आप कंप्लीट कर लोगे, दैट विल बी वेरी इजी टू राइट द अमाउंट इन योर जर्नल एंट्री, राइट। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव, हर कैटेगरी को एप्लीकेशन मनी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 लाख इन्होंने दे दिया होगा आपको 20 लाख, 80,000 इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से आपको 8 लाख दे दिया होगा, 1,20,000 10 रुपए के हिसाब से 12 लाख दे दिया होगा। टोटल अलग करने की जरूरत नहीं है, टोटल को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 लाख। इट मींस कि दिस इज डेड श्योर कि पहली एंट्री आपकी 40 लाख से आनी है। और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, वेरी इजी। अब अगला क्या होता है, हम इसे ड्यू करते हैं, ठीक है। ड्यू करने के लिए आपने अलॉटेड को एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में अमाउंट डालनी है ना, ठीक। तो एंट्री का सीक्वेंस विल टेल यू कि अगला कॉलम क्या होगा, पहले रिसीव फिर ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो आप अलॉटेड को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करते जाओ, नील 0 या नील लिख दो। देन 80,000 8 लाख, 20,000 2 लाख। अब वैसे तो अगला सीक्वेंस है कि अलॉटमेंट को ड्यू करो, एंट्री का सीक्वेंस, लेकिन यहां पे एक स्टेप बनता है, इस कॉलम और इस कॉलम मतलब थर्ड और फोर्थ कॉलम के डिफरेंस को एक्सेस कहते हैं। आपके पास कितनी एक्सेस मनी आई है, ताकि आपको रिफंड करना कितना है वो पता चल जाए। तो अगला कॉलम हम बनाएंगे एक्सेस रिसीव्ड। 20 लाख मिला, आपने इन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, 20 का 20 लाख एक्सेस है ना, दैट यू विल रिटर्न। और मैं इसे सर्कल करके इसलिए रख देती हूं और मैं इसके साथ आर लिख देती हूं, आर का मतलब है रिफंड करना। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन। So we are getting excess of rupees 20 lakh. Why? Because we are not giving them a single share to this category. 2 लाख के 2 लाख शेयर होल्डर्स को मैंने रिजेक्शन का लेटर भेज दिया, रिग्रेट लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, एंड वी आर सपोज टू पे बैक देयर मनी टू देम, ठीक है। हमें उनका पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। लेट मी रेज इट। अब इधर कोई भी एक्सेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 100% अलॉटमेंट हुई थी। अब यहाँ पे एक्सेस मिल गया 12 लाख, मिलना चाहिए था 2 लाख, 10 लाख आपके पास एक्सेस है। इसी कैटेगरी का एक्सेस उसने बोला है कि आप एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट के अगेंस्ट और कॉल्स के अगेंस्ट। दैट्स व्हाई आई हैव टू एलैबोरेट द टेबल। और मेरे पास अब टर्न आएगी अलॉटमेंट की। अगला कॉलम आपका होगा अलॉटमेंट ड्यू। सेकंड कॉलम को उठाओगे और अलॉटमेंट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। पहले केस में नो अलॉटमेंट क्योंकि शेयर ही नहीं मिला, छोड़ दो। देन 80,000 इंटू 15 कितना बनेगा, 1,20,000। Then 20,000 into 15, बोलो जी 20,000 into 15 how much, 3 लाख। अगला एंट्री में सीक्वेंस क्या होता है, ये अलॉटमेंट ड्यू है भाई, इस कॉलम का नाम अलॉटमेंट ड्यू रखो। अगले कॉलम का नाम स्टूडेंट्स होगा अलॉटमेंट रिसीव्ड। सी द कॉलम्स नेम। अगला कॉलम होगा एक्सेस एडजस्टेड। एक्सेस एडजस्टेड का मतलब क्या है, जो एक्सेस आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था वो यहाँ पे क्या करो, एडजस्ट करो, ठीक है। जितना एडजस्ट हो जाएगा फाइन, नेट हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सेस एडजस्टेड, इस कॉलम को तो वैसे ही छोड़ दो ना, ये तो रिफंड वाला केस है। यहाँ पे कोई एक्सेस था ही, नो वी हैव एक्सेस ओवर हियर। यहाँ पे एक्सेस कितना है, हमें मिलना कितना चाहिए था, यस 10 लाख हमारे पास एक्सेस है। 3 लाख आपकी अलॉटमेंट है, तो 3 लाख का 3 लाख एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी भी एक्सेस इस 10 लाख में से 7 लाख आपके पास है, उस 7 लाख को आप यूज करोगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के लिए। गेटिंग मी? अब रिसीव लिखो, अलॉटमेंट रिसीव।
अब बोलो 1,20,000 में से एक्सेस कुछ भी नहीं एडजस्ट हुआ, सारे का सारा पैसा ये शेयर होल्डर्स आपको देंगे। 3 लाख था आपका अलॉटमेंट ड्यू इस कैटेगरी का, 3 लाख का 3 लाख ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया है, अब थोड़ी ना कुछ मिलेगा, नहीं, बिकॉज ऑल दिस होल अमाउंट यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इतना सारा तो गैप था। 1,20,000 के लिए इन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया था एंड यू जस्ट गिव देम 20,000 शेयर। प्रपोर्शन हुआ 1:6 का या 6:1 का। अप्लाइड कितने थे? 6 शेयर, और बदले में उन्हें कितना मिला? 1। मैंने निकाल ली ना प्रपोर्शन, ठीक है। 6:1 के प्रपोर्शन में आपने उन्हें क्या करी थी? अलॉटमेंट। चाहो तो इन कॉलम्स का टोटल भी साथ साथ करते जाओ, ये टोटल बनेगा 1,20,000, सॉरी 4,20,000, दिस इज 3 लाख एंड दिस इज 1,20,000। अब सीक्वेंस वाइज याद करो को, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल कितनी अमाउंट की है? सेकेंड कॉल कहता मैंने अभी मंगवानी ही नहीं है, फर्स्ट कॉल 15 रुपीज। सेकेंड कॉलम को उठाओ और फिर से फर्स्ट कॉल के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। फर्स्ट कॉल ड्यू, it seems to be a lengthy table, but once you are getting the procedure it will become very easy for you। yes, second column को उठाओ, पहला तो वैसे ही blank, 80,000 फिर से सेम, 1,20,000, 20,000 into 15 फिर से 3 लाख। अब देखो जी 3 लाख में से 10 लाख तो मेरे पास पहले से पड़ा है, ठीक है। 10 में से 3 लाख अलॉटमेंट का एडजस्ट हो गया, और 3 लाख एडजस्ट हो सकता है, ठीक। एक्सेस फिर से एडजस्ट होगा, एक्सेस एडजस्टेड, पहले केस में कुछ नहीं, दूसरे में एक्सेस था ही नहीं, 3 लाख एक्सेस एडजस्टेड हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि आपको फर्स्ट कॉल का कितना मिलेगा, 1,20,000 ये, और इसका मिलना ही नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, तो आप जब फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करोगे आप 1,20,000 से करो, चेक कर लो चाहे बुक में। अलॉटमेंट रिसीव की जब आप एंट्री करोगे आप 1,20,000 से करोगे, क्योंकि 3 लाख तो आपका एक्सेस एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपके पास आ चुका है। सी द बोर्ड हियर, this is excess I adjusted here only, there was no excess in the second category, कोई excess था ही। अब देखते हैं सेकंड कॉल के बारे में उसने करी है एंट्रीज की नहीं। yes, second call I have to elaborate it। फर्स्ट कॉलम I am erasing, यहां पे मैं करूंगी सेकंड कॉल ड्यू, दिस इज सेकंड कॉल ड्यू। देखना अभी आंसर कैसे आएगा, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल वॉज ऑफ ₹10, ठीक है जी। अलॉटमेंट वाले कॉलम को उठाओ और 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 80,000, 80 को 10 से किया, 20,000 को 10 से किया, 2 लाख। इसका कोई एक्सेस है ही नहीं, एक्सेस एडजस्टेड, रिवर्स चल रही हूं, एक्सेस एडजस्टेड। यहाँ पे एक्सेस अभी भी आपका 10 लाख में से 3 लाख ये एडजस्ट हो गया, 3 लाख ये एडजस्ट हो गया, 2 लाख और एडजस्ट कर सकते हो, 2 लाख एडजस्ट करो। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल अकाउंट की कितनी, फाइनल कॉल का कितना पैसा मिला, रिसीव्ड वाला कॉलम बनाओ, यहाँ पे 80,000 से एंट्री करी होगी उसने, क्योंकि 2 लाख तो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया। फाइनल कॉल रिसीव्ड, यहाँ पे लिखो सेकेंड कॉल रिसीव्ड। अब कुल मिला के मेरे को किस कंक्लूजन पे पहुंचना था, ये एक जो सर्कल्ड अमाउंट है 2 लाख आपको वापस करना है, एक इस कैटेगरी का देखो कितना वापस करना है, 10 लाख एक्सेस था, 3 आपका अलॉटमेंट का एडजस्ट हुआ, 3 आपका फर्स्ट कॉल का एडजस्ट हुआ, 2 आपका सेकंड कॉल का एडजस्ट हुआ, 8 लाख इसमें से एडजस्ट हो गया, अभी भी 2 लाख बचा ना, दैट 2 लाख यू हैव टू रिफंड। इट मींस कि रिफंड आपका 22 लाख आएगा। तभी मैं कल रुक गई थी, सेकंड एंट्री में रिफंड की अमाउंट 22 लाख आनी है, एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट यू कैन जज विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, ठीक है। दो ही इज नॉट प्रिपेयरिंग द टेबल इन योर बुक, बट इन द अर्लियर or the next examples he will be preparing the table, so this is the right time to understand the table। अब कहां से मेरे को पता चला रिफंड करना है, इस 10 लाख में से 3 ये माइनस करो, 3 ये माइनस करो, 2 वो माइनस करो, तो 2 लाख अभी भी आपके पास है, दैट यू नीड टू रिफंड बैक। इस कैटेगरी में से 2 लाख आपने क्या कर देना है, वापस कर देना है। Be passing journaling, let's see, see here, see the journal entries। पहली जर्नल एंट्री अभी सिखाई आपको, 4 लाख इंटू 10, ठीक है। पहले कॉलम का टोटल 40 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा ट्रिक है, बट आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ टेबल। लेट्स सी, जर्नल इन द बुक्स ऑफ क्रिस्टल, जो भी नाम है हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। 4 लाख की एप्लीकेशन साइज, 10 रुपए एप्लीकेशन मनी पर शेयर है, सो इट कम्स टू अस 40 लाख। अगली एंट्री ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, क्योंकि कॉल्स इकट्ठी लिख दो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, कॉल्स वी कैन राइट कलेक्टिवली। चलिए इसे एंट्री करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब मेरे माइंड में स्टेटमेंट मैंने ताजा ताजा करवाया तो मेरे को याद है, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस लिखता है या अकेला कॉल्स लिखता है, लेट मी रीड, कॉल्स इन एडवांस लिखता है, ठीक है फाइन। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मींस टाइम से पहले फर्म के पास पैसा आ गया। अब इसकी नेचर आपको थर्ड बुक में करवाया हुआ बैलेंस शीट के कंटेंट में, कॉल्स इन एडवांस इज योर अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी इज द मेजर हेड एंड अदर करंट लायबिलिटी विल बी द सब हेड, ये आपको याद रखना है। शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, आपने शेयर दिए कितने, सेकंड कॉलम का टोटल बताओ, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 लाख। अलॉटमेंट के अगेंस्ट 3 लाख एडजस्ट हो गया। कॉल्स का कितना, 3 लाख आपकी फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल आपकी 2 लाख थी, तो कॉल्स इन एडवांस कितना है, 5 लाख। देखो जी वापसी कितनी करें, एक तो 20 लाख टोटली रिफंड और 2 लाख आपका थर्ड कैटेगरी में से बचा था 22 लाख। दैट्स व्हाई ही इज पासिंग द एंट्री टू बैंक विद 22 लाख। यहां तक किसी को कुछ पूछना ही कहना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड विद द अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स को, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके कॉलम में बताया हुआ 1 लाख, 10 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन मनी थी, 10 लाख हो गया। हाँ जी, कितना अलॉटमेंट का एक्सेस है, 3 लाख, आपको टेबल से करवाया। ये मैंने 5 लाख कैसे लिखा, 3 लाख फर्स्ट कॉल है, 2 लाख सेकंड कॉल है, थर्ड कैटेगरी की सिर्फ 5 लाख यहाँ पे एडजस्ट हो गया, 20 लाख फर्स्ट कैटेगरी का वापस करो और 2 लाख आप थर्ड कैटेगरी का वापस करो, ओवरऑल 22 लाख की वापसी होगी, विच वी कॉल रिफंड। एनी डाउट टू एनीवन? अब एंट्रीज करते जाओ तो टेबल विल हेल्प यू अलॉट। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, देखना जरा एंट्री में क्या ट्विस्ट होगा। टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट वाज ड्यू विद व्हाट, 1 लाख इंटू कितने, 15 लाख। कितना मिलेगा, 3 लाख तो ऑलरेडी मेरे पास है, 12 ही मिलेगा ना, बोलो। देखो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कितने से करिए, 12 लाख से डन। ठीक है, मैंने टोटल भी करवाया आपको चेक, कॉलम का टेबल के कॉलम का टोटल देख लो, अलॉटमेंट रिसीव्ड वाला, अलॉटमेंट रिसीव्ड वाला टोटल देखो कैसे करोगे, 80,000 इंटू 15, 80,000 इंटू 15, बस वही मिलना है, दैट इज व्हाट 12 लाख। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 3 लाख तो मिल चुका पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे, वो तो एक्सेस एडजस्ट हो चुका था। दिस इज अलॉटमेंट, दैट इज 12 लाख। अब देखो कितना आसान, फिर से टेबल देखो अपना, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितने की है, फिर से 15 की, so it is going to be debited with 15 लाख, फिर से 12 लाख ही मिलना है। क्यों, क्योंकि 3 लाख तो पहले से इस 5 में 3 लाख फर्स्ट कॉल का है, 3 लाख तो पहले से ही मेरे पास है, वो एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, तो करो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, दैट इज 12 लाख। सेकेंड कॉल की बताइए, टेल मी सेकेंड कॉल कितने की थी, 10 रुपए की। ठीक है, सेकेंड कॉल ड्यू करवाओ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बोलो जी कितनी थी, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस चल रहा है। ठीक है, 8 लाख से एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बुक में से चेक कर लो, 8 लाख ही रिसीव हुआ होगा। Yes, he is adjusting. This I will also tell you. बच्चे इस एंट्री में ना कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ है, see the camera here. आप नेट से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक वाला ऐसे कर रहा है। कॉल्स इन एडवांस कितनी चल रही है, 5 लाख। ठीक है, इस 5 लाख को आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब क्या है, जहां पे आपने आई विल बी राइटिंग हियर,
शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री जरा देखना, रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैंने करवाया 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब इसमें से शेयर फर्स्ट कॉल में से कॉल्स इन एडवांस में 2 लाख है, तो इसे राइट ऑफ कर दो। आपकी बुक वाला कहता है उसमें से ले लो, बाकी मिला कितना 12 लाख, 3 लाख ऑलरेडी मेरे पास था, वहां से उठा लो, और फर्स्ट कॉल ओवरऑल 15 लाख से ही करो। आप नेट से भी कर दोगे गलत नहीं होगा, बिकॉज वी ओपनड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन आवर सेकंड एंट्री। बेटर है कि जब टाइम इसका आए तो उसे राइट ऑफ भी करो, ठीक है। इस कॉल्स इन एडवांस में 5 लाख टोटल अमाउंट है, जिसमें से 3 लाख फर्स्ट कॉल की थी, ठीक। वो 3 लाख मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। इसी तरह से सेकंड कॉल की एंट्री देखो, जो मैंने अभी बताई आपको, कि आप खुद कर लेना। सेकंड कॉल बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, 2 वॉट शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितने की है, 10 लाख की, मिला कितना 8 लाख, 2 लाख कॉल्स इन एडवांस का राइट ऑफ कर दो, खत्म। दिस इज द वे। So this is your homework. Again, you will be preparing the table on your own. You will be passing your entries on your own. अगर कोई डाउट होगा, you can ask me. 14th पे आ जाओ फटाफट. Come at 14th illustration. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया स्टार्टिंग में, और 2016 में ये पेपर में आ चुका है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ एंड टू डेवलप, बारामूला कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड कि वहां पे हम अपना पावर प्लांट लगाएंगे। अब पावर प्लांट लगाने के लिए इस कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तो कंपनी की इश्यूड कैपिटल है भाई, इश्यूड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 8,50,000 शेयर्स, राइट। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 शेयर्स। कितने का एक, 10 रुपए का एक, 3 रुपए प्रीमियम। प्रीमियम को मैं हमेशा प्लस के साइन के साथ लिखा करूंगी, 10 + 3, 10 इज द फेस वैल्यू, 3 रुपीज इज द प्रीमियम। और सारा पैसा कहता है एप्लीकेशन के टाइम पे मिलना है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। इट मींस कि आपको प्रीमियम की एंट्री भी एप्लीकेशन के साथ ही करनी है। आपके पास देने को शेयर है 8.5 लाख, सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखना कितना गैप है। लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आई 20 लाख शेयर्स की, तो देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ 11,50,000 शेयर्स। हम कैसे पूरा करें? फॉर दैट वी अज्यूम्ड व्हाट, 3 लाख की एप्लीकेशन कहता सीधी रिजेक्ट कर दो, बाकियों के ऊपर प्रोराटा लगा देना। आई हैव टू प्रिपेयर द टेबल, और टेबल के 4 या 5 कॉलम ही बनेंगे क्योंकि सिंगल इंस्टॉलमेंट ही तो है, ठीक है। फर्स्टली सी द टेबल एंड देन प्रोसीड फर्दर। धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, हो सकता है आप टेबल के बिना ही सॉल्व कर लो, बट बेटर है फर्स्टली अंडरस्टैंड हाउ द स्टेप्स आर टू बी फॉलो, ठीक, क्योंकि आगे जाके 4 फीचर में तो टेबल रिक्वायर्ड ही रहता है। दिस इज फॉर अप्लाइड, दिस इज फॉर अलॉटेड। सबको पता है अप्लाइड का टोटल मेरे को 20 लाख बनाना है और अलॉटेड का 8.5 लाख, राइट। अब अप्लाइड में वो कहता है 3 लाख को सीधा रिजेक्ट कर देना, मतलब नील। बाकी कितने रह गए? बाकी कितने रह गए? 17 लाख। 17 लाख वालों को आपने 8.5 लाख दिए, मींस 50% अलॉटमेंट है ना। दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज ही इज नॉट आस्किंग कि कैसे हुआ, ठीक है। 2:1 का प्रपोर्शन हुआ, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया आपने उसे 1 दिया, तो 50% हुआ ना। जिन्होंने 17 लाख के लिए अप्लाई किया, आपके पास देने को ही 8.5 लाख है, तो 50% ही अलॉटमेंट हुई। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू, ही नेवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट। अब क्या हुआ, चलिए जी एंट्री करते हैं। अब अगला स्टेप क्या है आपका? एप्लीकेशन मनी रिसीव। सारी की सारी एप्लीकेशन मनी है। यहां पे आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्रीमियम का कॉलम अलग बनाओ और फेस वैल्यू का अलग बनाओ, ठीक है, ताकि आपको एंट्री में अमाउंट ढूंढने में आसानी रहे। वैसे भी राउंड ऑफ के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 होगा, ये 3 होगा। उठाओ जी, 3 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 लाख, 17 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया 1 करोड़। जीरोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 crore and 70 lakh. So I am writing it like this, 1.70. तो आपके पास ओवरऑल ये 2 करोड़ आना चाहिए। एप्लीकेशन का 2 करोड़ फेस वैल्यू, ठीक है। ₹3 क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करो जी,
3 से मल्टीप्लाई, दिस इज 9 लाख। हाँ जी 17 को 3 से 51 लाख, तो इट कम्स टू यू 60 लाख। इट मीन्स कि प्रीमियम रिजर्व में आपने 60 लाख अमाउंट डालनी है। ठीक, अब चलते हैं आगे, साथ साथ पहले एंट्री करनी शुरू करो। आगे एलैबोरेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेस वगैरह है ही नहीं। अगर है भी तो हमें सारा रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, राइट। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा हमारा आसान हो गया। चलो जी पहली एंट्री करवाओ। पहली एंट्री यहां से मेरे को अमाउंट पता चलेगी 2 करोड़ एंड 60 लाख। देखो इतनी अमाउंट ही लिखी है, मेरे को पता चल गया 2 करोड़ मेरी फेस वैल्यू और 60 लाख हमें प्रीमियम का मिला, मेरे को टेबल ने बताया ना। ठीक है, 2 करोड़ एंड 60 लाख से आपकी पहली एंट्री आपकी बुक में करी हुई है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है, लमसम में पैसा कंपनी मंगवाती है, तो हम उस इंस्टॉलमेंट को नाम देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। दिस इज अ रूल। कंबाइन, पहली एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 करोड़ एंड 60 लाख। जीरोस गिन के लिखनी है, अमाउंट गलत लिखोगे तो मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। Being application money received on 20 lakh shares of ₹10 each at ₹13 per share। 10 रुपए फेस वैल्यू थी, लेकिन हमारा इशू प्राइस कितना था 13 रुपए, और वो 13 रुपीज कैसे बना, 3 रुपए प्रीमियम के थे। दिस इज व्हाट द कंपनी डिसाइडेड, दिस ज्योति पावर लिमिटेड। अब अगली एंट्री ड्यू की करवाओ। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड। हाँ जी, किसमें ट्रांसफर करें, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू बैंक। ठीक है, आगे कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, मैं किसके अगेंस्ट एक्सेस एडजस्ट करूं, आई हैव टू रिफंड ना, टू बैंक। कैन यू टेल मी कि एक्सेस किसका होगा, इसी का होगा। इसका मेरे को मिला कितना 30 + 9 प्रीमियम मिला ना 39 लाख। मेरे को इसका क्या करना है, सारे का सारा वापस करना है क्योंकि इसको कोई अलॉट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी तो एक्सेस है, यहाँ पे आपने 50% क्या करी है, इनको अलॉटमेंट करी है, तो 50% का पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे आपको कितना मिला, यस 10 के हिसाब से आपने 17 को मल्टीप्लाई किया, जबकि 170 का कितना मिलना चाहिए था, लेट मी टेल यू, दिस इज 85 लाख मिलना चाहिए था। 85 लाख मैं यहां से वापस करूंगी, 51 लाख का भी हाफ कर दो। 51 लाख का हमें कितना मिलना चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई करके करो जी आप। 51 लाख का कितना हाफ बनेगा, 25 लाख एंड 50,000। 25 ऑरली कर लो, 25 लाख एंड 50,000 और 39 लाख ये देखो कितना वापसी होगा। ऐड करो, एड इट और टेल मी अबाउट इट। 90, 1 करोड़ एंड 10 लाख, बिल्कुल ठीक। 1 करोड़ 10 लाख एंड 50,000 और 39 लाख बीच में ऐड किया, बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ 49 लाख एंड 50,000 जो टोटल उसने दिया, तीनों को ऐड करके। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इसका सारे का सारा पैसा वापस 39 लाख मैंने ये लिखा। इसको 50% अलॉटमेंट हुई, 50% अलॉटमेंट हुई तो 1 करोड़ 70 लाख का हाफ वापस करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको किसी भी एक्सेस के अगेंस्ट एडजस्ट ही नहीं कर सकते, तो 1,70,000 का हाफ 85 लाख बनता, भाई ये वापस करेंगे। फिर प्रीमियम आप ले चुके हैं 51 लाख, जबकि आपने इन्हें अलॉट ही 50% शेयर करे हैं, तो 51 लाख का हाफ कर दीजिए। 25 लाख एंड 50,000 तीनों को ऐड करेंगे, 1 करोड़ 49 लाख एंड 50,000 यू आर सपोज टू रिटर्न बैक, राइट। फिर मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले यहां पे लिखो 2 करोड़ 60 लाख। 4 नंबर में क्वेश्चन आया होगा, 2 एंट्रीज, लेकिन कैलकुलेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक, शेयर कैपिटल में कितना डालना है, कितने शेयर्स हैं हमारे पास देने को, 8.5 लाख। 8.5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, हमेशा फेस वैल्यू से, तो ये 85 लाख बनेगा। 85 लाख लिख दिया। एसपीआर में मैंने कितना डालना है, एसपीआर का टोटल चेक करो, पहले ही करवाया होगा 60 लाख। नहीं, यस बिल्कुल ठीक है, हाफ करेंगे। दिस तो यू रिसीव्ड ना, 85 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 लाख एंड 50,000, और कितना पैसा वापस करना है, डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। मान लो ये दोनों अमाउंट्स आपकी गलत है, फिर तीसरी भी गलत आएगी, इसलिए पहली 2 अमाउंट्स सही ढंग से कैलकुलेट करो, और बैंक में जो रिफंड है वो आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, बट यू शुड बी कंफर्म, ठीक है, हाउ दिस डिफरेंस ही हैज कैलकुलेटेड। ठीक, हाउ वी हैव टू रिटर्न, रिफंड अमाउंट हमारा कितना होगा, कितना बना, 1 करोड़ 49 लाख एंड 50,000। एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क।
किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। 15th खुद देखिएगा, 16th पे आ जाइए जल्दी से, कम एट 16th। स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे, मेरे पास 5 मिनट्स हैं अभी। लेट्स सी 16th, फिर से प्रो राटा देखते हैं, टेबल के बिना सॉल्व हो सकता है कि ऐसे टेबल बना के करना पड़ेगा। लेट्स सी, राघव लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड, पहली लाइन से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट लाइन में उसने रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा है, दैट इज ओनली फॉर एन इन्फॉर्मेशन एंड दैट वी आर सपोज टू राइट इन आवर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल जितनी मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे को ये पता चल गया 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है शेयर, FB मीन्स फेस वैल्यू। इशूड शेयर्स हैं, देखना कितने की एप्लीकेशन आई। इशूड शेयर्स है 60,000। आपने लोगों को बोला कि हमारे पास आपको बेचने के लिए 60,000 शेयर्स हैं। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस 4 रुपीज है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। कहता जब जरूरत पड़ेगी तो उसे मंगवा लेंगे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेगा शायद वो। हमें एप्लीकेशन आई बाई 92,000 शेयर्स की। फिर से आपको नहीं लगता ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? आपके पास बेचने और देने को शेयर्स हैं 60,000, लोग आपके शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं 92,000 शेयर्स के लिए, और उसके लिए कहता मैंने नीचे वाला प्रोसीजर फॉलो किया। And here I prepared the column applied, here I prepared the column allotted. कहता जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था ना, उन्हें फुल अलॉटमेंट, मींस यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है। 40,000 वालों को 40,000 शेयर्स ही क्या हुए हैं, अलॉट, फुल अलॉटमेंट। कम टू नेक्स्ट 50,000, ध्यान से देखना अगले का मतलब, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें सिर्फ 40% मिले, मींस 100 के पीछे 40 शेयर, तो 50,000 के पीछे 20,000 शेयर। प्रपोर्शन क्या हुआ, 2:5 का या 5:2 का। जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया हम लोगों ने उन्हें 2 शेयर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें मिले। पहला केस फुल अलॉटमेंट है, दूसरा केस प्रपोर्शनेट है, प्रो राटा है, तीसरा केस फुल रिजेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव वेज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन विद द कंपनी। अगली लाइन के बारे में बाद में देखते हैं। 84,000 शेयर्स पे कहता सिर्फ अलॉटमेंट मनी मिली, दैट्स इट। ओके, पहली एंट्री करते हैं, ऐसे ऑरली करते हैं। पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, इजी है हमारे लिए। पहली एंट्री करवाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस आई बाई आपको 92,000 शेयर्स की, 92,000 शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 627, 2,76,000 हमें मिल गया। एनी डाउट अबाउट दिस अमाउंट? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी फर्स्ट एंट्री की अमाउंट आती है, विच शुड ऑलवेज बी करेक्ट बाय यू ऑल। ये अमाउंट कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, so we will continue it in the next period.